Okay, children. Yesterday we were learning about subsets of a set, and there we learned how if each and every member of a set is present in another set, then we call that set is a subset of the given set. Then we learned related to number of subsets, that is 2 raised to n. Number of members in the set is n. Then number of subsets will be 2 raised to n. Then we learned how to make all subsets of that set. Then we learned what is power set of a given set, that is set of all subsets. And today furthermore a little remaining from the topic of subset are two topics, that is proper subset and universal set. Now let us learn what is a proper subset. Suppose if I have capital A, a set containing 1, 3 and 5. Now set C also contains 1, 3 and 5. So every member of A is present in set C. Every member of A is present in the set C. That is, actually they are equal sets. But I can also say that A is a subset of C. I can say A is a subset of C. I can say that A is a subset of C. But now see A and B. Set A has 1, 3 and 5. And all 1, 3 and 5 are present in the set B. See over here 1, 3, 5. In extra, B has members 2 and 4. That is, pura ka pura A, it is present inside set B. But other than A, it has some extra members also inside set B. Then at such time, we call A is a subset of B. Okay, it's correct. But A is called as a proper subset of B. A is a subset of B is also correct. But other than A, it has some extra members. So it will be called as A is a proper subset of B. So A is a proper subset of B. And B will be called as the superset of A. So B is called as the superset of A. So if you have all members equal, then yes, it is a subset. If you have all members and some extra members, then yes, it is a subset. But it is specially called as A is fully inside B. So A will be called as proper subset of B, and B will be called as the superset of A. Now next we'll go to something called as universal set, which is very important in set theory. Now what is a universal set? The definition of universal set is if all sets under consideration, सपोज मैं 4 सेट ले सकती हूँ, मैं 3 सेट ले सकती हूँ, मैं 5 सेट ले सकती हूँ. Suppose if I take 5 sets A, B, C, D and E, and I want to study all the 5 sets by doing some work. Now if I wish to study all sets of a particular for some function, तो पांचों 5 सेट जिनके सबसेट होंगे, तो एक बड़ा सा सेट लेना पड़ेगा हमें. वी हैव A, B, C, D and E. 5 सेट्स है हमारे पास. अब हम एक बड़ा सेट लेंगे जिसमें A भी उसका सबसेट होगा, B भी उसका सबसेट है, C भी उसका सबसेट है, D भी उसका सबसेट है एंड E भी उसका सबसेट है. तो एक बड़ा सेट जिसमें A, B, C, D, E सब उसके सबसेट है, तो उस बड़े सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट. अब ये यूनिवर्सल सेट कोई इनफाइनाइट होने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. इफ कैपिटल A हैज 0 एंड 1, दो मेंबर्स है 0, 1. B में है 1, 2, 3. C में है 1, 5 एंड 7. तो हमें 3 सेट पढ़ने हैं, A, B और C. अब ये तीनों सेट किसी सेट के सबसेट होने चाहिए. तो मैंने यूनिवर्सल सेट में लिया, A भी उसके अंदर आ जाना चाहिए, तो 0, 1 आ गया.
B में है 1 2 3 तो 1 2 3 भी आ गया। देन C में है 1 5 और 7 तो 1 5 और 7 भी उसके अंदर आ गया। तो मैंने एक सेट लिया जिसमें 0 से लेकर 10 मेंबर्स रख दिए। नाउ A is inside universal set, B is also under the universal set and C is also inside this set, and therefore such a big set where all the sets which we are studying are inside that set, then such a big set is called as a universal set. Now next we shall go to something which we call as interval of real numbers. So okay, next we go to intervals in R, that is some group of numbers in continuity on a real number line. So यहाँ हमें क्या करना है? In our syllabus we want to convert the set notation into interval form and sometimes an interval form into a set notation. Now we right now do not know either the interval form or the set notation. Now let us see. Suppose if I write the set, और set में हमेशा property method से ही लिखूंगी, तो x यानी कि capital A is a set of all those x. कैसे x? X is greater than or equal to 5 and less than or equal to 9. Where x is any real number. ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है अगर आप इंटरवल पढ़ रहे हो तो, बिकॉज इंटरवल इज पॉसिबल ओनली ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। बिकॉज नेचुरल नंबर में तो क्या आएगा? 1 आएगा, फिर सीधा 2 आएगा। 1 और 2 के बीच में जो फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, वो उसे कंसिडर नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर्स भी नहीं करते। तो यहाँ पे जब मुझे फुल नंबर्स लेने हैं, होल नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, फ्रैक्शंस लेना है, एवरीथिंग आई वांट टू टेक रैशनल, आई वांट टू टेक इरैशनल, each and every number on the number line I want to stay, and therefore this condition x belongs to R is a very important condition. Now let us see x क्या हो सकता है? x can be any number from the number 5. नंबर लाइन पे ध्यान से देखते हैं, 5 से लेकर के 9 तक, from 5 up to 9, मैं 5 होल नंबर 6, 7, 8, 9 ये तो ले ही सकती हूँ। इसके अलावा 5 और 6 के बीच में जितने रैशनल्स, इरैशनल्स, मुझे सब कुछ कंसिडर कर लेना है। तो ईच एंड एवरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप टू 9 इफ आई टेक, देन I can write this in the interval form. The interval form can be written as like this way. I will write box brackets and I have written here 5 and comma and I have written here 9. तो 5, 9 and a box bracket. अच्छा, ये box bracket कब आएगा? कुछ इंटरवल में राउंड ब्रैकेट्स भी आएंगे। अच्छा, तो जब भी you have greater than or equal to, यहाँ पे भी लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब कि इनइक्वालिटी इज नॉट अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अच्छा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू वाला जो साइन है वो मौजूद नहीं है। तो सच इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। तो हमें अगर हमारे नंबर में 5 और 9 के बीच वाले नंबर तो मैं कंसिडर कर ही सकती हूँ, लेकिन इन एक्स्ट्रा आई कैन कंसिडर 5 ऑल्सो एंड आई कैन कंसिडर 9 ऑल्सो। मैं इक्वल टू 5 भी ले सकती हूँ, इक्वल टू 9 भी ले सकती हूँ और 5 और 9 के बीच वाला नंबर भी ले सकती हूँ। देन ऑल दीज नंबर्स can togetherly be written by 5, 9, starting from 5 and up to 9, from 5 up to 9, and box bracket का मतलब होता है it is less than equal to, less than equal to, like this way। तो equality sign जब होगा, यानी कि आप 5 और 9, तो बॉक्स ब्रैकेट 5, 9 का मतलब है 5 अंदर इंक्लूडेड है, 9 भी अंदर इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स अ बॉक्स ब्रैकेट।
Such an interval is called as a closed interval. It is called as a closed interval. Such an interval is a closed interval. Now I go to, this was one form of interval. Now I go to the second form of interval. See this, x is a real number. Extremely important condition is x should be a real number. X is a real number. Acha. Now they are saying x is between -2 and 3. X cannot be equal to -2. X cannot be equal to 3. मतलब starting from -2 up to the number 3. तो ये पूरे नंबर्स में कंसिडर कर सकती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम -2 अप टू द नंबर 3. लेकिन मुझे -2 नहीं लेना है, तो आई विल मेक अ हॉलो साइन लाइक दिस वे. तो दिस साइन आई विल मेक इट एम्प्टी. यहाँ देखो मैंने अंदर डार्क कर दिया है, डार्क डॉट्स कर दिए हैं. यहाँ पर जो डॉट था, डॉट को मैंने हॉलो किया है. हॉलो मतलब अंदर खाली रखा है. तो हॉलो डॉट्स का मतलब होता है -2 और 3 के बीच के सब नंबर ले सकते हो, लेकिन -2 को भी नहीं लेने का और 3 को भी नहीं लेने का. एंड सच एन इंटरवल कैन बी रिटन एज राउंड ब्रैकेट. अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा फ्रॉम -2 टू 3. तो -2 और 3 के बीच के सब नंबर ले लो, लेकिन राउंड ब्रैकेट मतलब -2 को मत लो, एंड यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट मतलब 3 को भी मत लो. यहाँ इसका मतलब है 2 और 3 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, वो दोनों स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को नहीं लेना है, बीच के सारे मेंबर्स को ले लेना है. तो जब आप इंटरवल को रखोगे तो उस इंटरवल को यू कॉल इट एज एन ओपन इंटरवल. यू कॉल इट एज एन ओपन इंटरवल. ओपन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो स्लॉट ऑफ नंबर्स हम ले रहे हैं वो स्लॉट ऑफ नंबर्स -2 से 3 तक की बात हो रही है, लेकिन -2 और 3 को नहीं लेना है. तो वो सेट जो है वो बंधा हुआ नहीं है बाय द डार्क डॉट्स, इट इज जस्ट लेफ्ट ओपन. देन ओपन इंटरवल, राइट, एंड इट विल बी रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स लाइक दिस. नाउ यू गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी, x such that x belongs to R. एंड यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? x is a real number. तो नंबर लाइन के ऊपर कंसिडर करना है. नाउ x कैसा है? 1 से लेकर 4 तक की बात करनी है हमें. तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 4 तक की बात करनी है. लेकिन यहाँ पे 1 और 4 का क्या करना है? तो यहाँ जो नंबर 1 है इसको मैं डार्क बना दूंगी डॉट को. तो दिस नंबर 4 इसको मुझे ले लेना है, लेकिन जो नंबर 1 है इसे ले लेना है, लेकिन ये जो नंबर 4 है उसे मुझे नहीं लेना. यानी कि मेरा x क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 1 के बाद के कुछ भी नंबर हो सकता है, और लेकिन अप टू 4, लेकिन 4 को मैं नहीं ले सकती. तो यहाँ पर मैंने डार्क डॉट से उसको बांध दिया है. I can take 1 from here, but I cannot take 4 over here. तो ये वाला जो सेट है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? I can write, मैं 1 ले सकती हूँ. जब ले सकते हैं उस नंबर को तो वहां पे बॉक्स ब्रैकेट आएगा, और 4 को नहीं लेना है. इट इज जस्ट लेस देन 4. तो जब 4 लिखेंगे हम तो 4 के यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा. तो नाउ यू सी 1 को ले सकते हैं इसीलिए बॉक्स ब्रैकेट, एंड 4 को नहीं ले सकते तो राउंड ब्रैकेट. यहाँ पे ये जो इंटरवल है आधा क्लोज है और आधा, यहाँ देखो दोनों ओपन है तो ओपन इंटरवल, यहाँ देखो दोनों क्लोज्ड है तो क्लोज्ड इंटरवल. लेकिन यहाँ पे एक बंद है और एक खुला है, तो सच एन इंटरवल कैन बी कॉल्ड एज, इट कैन बी कॉल्ड एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड
ऑल्सो बी कॉल्ड एज, शुरू में बंद है तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोज्ड ओपन interval. It can be called as a closed open interval. सेमी ओपन, आधा खुला है ऐसा भी बोल सकते हो. सेमी क्लोज्ड, आधा बंद है ऐसा भी बोल सकते हो. और क्लोज्ड ओपन, तो पहले क्या है, क्लोज्ड है और बाद में क्या है, ओपन है. तो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड ओपन interval. Now you go to the last one. I have it over here. मुझे नंबर कहां से कहां तक स्टडी करना है? From the number 3 up to the number 6. From the number 3 up to the number 6. मुझे नंबर 6 को डार्क करना है क्योंकि नंबर 6 मैं स्टडी में यूज कर सकती हूँ, लेकिन जो नंबर 3 है वो मुझे नहीं लेना है. 3 के पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो 3 नहीं ले सकती, लेकिन x कैन बी इक्वल टू 6, तो 6 को मैं ले सकती हूँ. तो सच एन इंटरवल कैन बी रिटन एज, यहाँ ओपन है क्योंकि 3 को नहीं ले सकते, जिसको नहीं ले सकते वहां राउंड ब्रैकेट, कॉमा यहाँ पे 6 को ले सकते हैं तो 6 के लिए क्लोज्ड इंटरवल. तो सच एन इंटरवल इज कॉल्ड एज open closed interval. It can be called open closed interval. It can also be called as semi open. It can also be called as semi closed, or it can be called as शुरू में open है और बाद में closed है. So it can also be called as open closed intervals. Now next we'll see few more examples based on it. Okay children, now see next exercise 1.3 my next type of question is, you are given set notation and you are asked to write it in the interval form. अब आपको लिखना आ गया है because I explained it. तो which two numbers are to be included? मुझे 4 और 6 की बात करनी है तो मैं 4 और 6 लिख लूंगी. उसके बाद जब सिंगल यानी कि लेस देन है, इक्वल टू वाला साइन नहीं है, जब ऐसा हो तो राउंड ब्रैकेट करना है, एंड लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन जुड़ा है तो बॉक्स ब्रैकेट करना है. तो दिस इज हाउ टू राइट दैट इंटरवल. विच टाइप ऑफ इंटरवल इट इज? ओपन क्लोज्ड interval. Then now next one let us write. So which two numbers are included? -12 और comma -10. ये दो नंबर की मुझे बात करनी है. अच्छा, अब मैं ये वाले साइंस को देखूंगी कि x lies between which. ये इनइक्वालिटी कैसी है? इक्वल टू का लाइन नहीं है, नहीं है मतलब राउंड ब्रैकेट. इक्वल टू का लाइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो देयरफॉर यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट. तो इट इज एन ओपन इंटरवल. नेक्स्ट वी गो टू विच टू नंबर्स आर इंक्लूडेड? 0 and 7. तो आई राइट 0,7 लाइक दिस वे. अच्छा, अब इधर क्या है? 0 के बाद लेस देन के साथ एक इक्वल टू की साइन है, मतलब इट इज ए क्लोज्ड इंटरवल. एंड लेस देन 7 इक्वल टू की साइन यहाँ पे नहीं है, नहीं है दैट मीन्स इट इज अ राउंड ब्रैकेट ओवर हियर. तो इट इज ए क्लोज्ड ओपन इंटरवल. नाउ लास्टली फॉर द लास्ट क्वेश्चन अगेन आई हैव विच टू नंबर्स टू बी स्टडी? 3 and 4. ये दो नंबर्स मुझे स्टडी करने हैं. अच्छा, दोनों में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इधर भी क्लोज्ड है इधर भी क्लोज्ड है. तो दिस इज ए क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज्ड ओपन, राइट. सो नेक्स्ट 4 एग्जांपल्स वी विल सी, जहां पे मैंने सेट दिया था और आपको इंटरवल लिखना था. अब मैं इंटरवल दूंगी और आपको सेट लिखना है. सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट पोर्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ दिया गया है
और आपको सेट नोटेशन लिखना है। जब आपको सेट नोटेशन लिखने को कहा जाए तो ऑलवेज राइट प्रॉपर्टी मेथड। तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हर बार आपको पहले लिखनी है कि x इज अ रियल नंबर। उसके बाद मुझे दो नंबर्स को कंसिडर करना है, एक -3 है, फिर मैं मेरा x लिखूंगी और फिर मैं 0 लिखूंगी एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट। नाउ सी -3 एंड 2 ये दो नंबर्स मुझे कंसिडर करने हैं। अब यहाँ राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे अगेन राउंड ब्रैकेट इज देयर, तो इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। राउंड ब्रैकेट है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज आएंगे। नाउ नेक्स्ट आई गो टू 6,12। तो 6,12 मतलब विच नंबर्स आई हैव टू स्टडी, 6, x एंड 12। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। अब मैं मेरी इनइक्वालिटीज डालूंगी। तो ये कैसा ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट है। बॉक्स ब्रैकेट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू दोनों आएगा। यहाँ 12 के बाद भी बॉक्स ब्रैकेट है मतलब लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,12। तो x is a real number such that now 6,12, I think I have made a mistake. Okay, fine. 6,12 only it is. 6,12, 6, x and 12. The difference is here. Here is a round bracket. So this is which type of bracket? A round bracket. Round bracket माने strict inequality and box bracket माने less than or equal to दोनों. Close the bracket and then lastly -23 to 5. I can write it as set of x such that x belongs to R and semicolon such that 23 and 5. तो -23 less than x less than 5. I close it. Now see, इधर closed है तो less than के साथ equal to भी आएगा, इधर round bracket है तो only strict inequality will come, right? So this is it. And the last question which you are supposed to deal is to tell universal set. अगर मैं आपको isosceles triangle दूंगी कि different type of isosceles triangle and I'll tell you children make a universal set, तो आप क्या बोलोगे यूनिवर्सल सेट में? बड़ा सेट, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। सो दैट इज हाउ यू कैन कंसिडर डिफरेंट एग्जांपल्स for universal set. Today we studied what is an interval, we studied what is a universal set, we studied what is a proper subset, and we studied what is a superset. So we meet in the next session. Thank you children.